Friends, good evening to all of you. We have all gathered here in the beautiful state of Goa to mark the inaugural ceremony of 237th Council meeting of Indian Road Congress. We have with us Honorable Indian Minister of State for Road Transport and Highways, Sri Ajay Tamta ji. We have with us Honorable Member of Rajya Sabha, our friend Sri Sadanand Seth Tanawade ji. We have with us D.R. Meghwal ji, President Indian Road Congress, Sri Vinay Kumar Rajawat, DG North, Sri Rahul Gupta, Secretary General IRC, Professor Manoranjan Parida, Immediate Past President IRC. We have Sri Rajiv Yadav, Vice President IRC, Lakshmikant Padi, Vice President IRC, Manoj Srivastava, Vice President IRC, Sri D. Sarangi, Vice President PIRC, our Principal Chief Engineer and Chairman of the Local Organizing Committee, Sri Sandeep Chodankarji, Local Organizing Secretary and Chief Engineer, Sri Vijay Bhendeji, and Chief Engineer National Highways, Sri Dattaprasad Kamatji, distinguished guests, engineers, delegates, members of the Council of Indian Road Congress, ladies and gentlemen. On behalf of my government and my own behalf, I extend our warm welcome to all the guests present for this 237th midterm council meeting of the Indian Road Congress, which is being held today, tomorrow and day after tomorrow in the state of Goa. Indian Road Congress, established in 1934 in India, is apex body for road engineering. It plays a vital role in the technology as far as roads are concerned. All of us know today that infrastructure plays an important role in shaping the future of the country. Our beloved Prime Minister has a dream. He says Vikasit Bharat by 2047. To follow him, our Chief Minister Dr. Pramod Sawant says Vikasit Goa by 2037. If you want to achieve this, one parameter through which it can be achieved is infrastructure. People in the world will look at the infrastructure being created in the country and they will decide whether this country is Vikasit or not. And it is here Indian Road Congress plays a very, very important role. Goa has been very lucky. Goa is a small and beautiful state of Goa. And we have seen that Goa's requirements are very less. I am extremely thankful to our beloved Prime Minister Narendra Modi ji and our Minister for Road Transport Sri Nitin Gadkari ji, because they have always supported the state of Goa in all the sectors. But their attention in this particular sector is much more, and that is why if you see in a small state of Goa, the investment done by your ministry, I would bring to a notice of Sri Ajay Tamta ji, that investment done by your ministry in the state of Goa is really very, very valuable. We have 15 lakh population. We get around 70 to 80 lakhs as tourists. Here everybody comes to see Goa. Now they have started coming to see the beauty. In fact, Honorable Minister Ajay Tamta ji visited some of the bridges. He expressed to me that Goa is really done well. You have developed iconic bridges. They are not bridge models, just concretized and kept, but they are iconic models, which people will go back with sweet memories. They take selfies. There was a rush on Atal Setu when it was inaugurated, and I am sure in other bridges also, when people come here, even this Porvorim corridor, which we are trying to complete with all the difficulties, in spite of all the difficulties. As Mr. Vishal Pandey said, 70 to 75,000 ply on that road. How difficult it is to work under such circumstances, only the contractor and engineers know. But in spite of all the difficulties, we have personally monitored, we have had many meetings with Minister and myself, we have held many meetings with them, and we saw to it that the bridge is completed on the eve of Ganesh Chaturthi. That is the commitment of this government to the people of Goa. And that is why I say
that with the help of center, we could do lots of things in the infrastructure in the state of Goa. So whoever comes here, they always say that you have developed good infrastructure. I am thankful to Union Minister also. He also said that Goa has done a good job as far as infrastructure is concerned. Thank you very much, sir. Now, our Chief Minister Dr. Pramod Sawant has already put before you all the issues which require some help from your side. We are going for elections in the month of January. And my one request especially to you, I represent Margao constituency for 8 times. This is my 8th election. Now there is an eastern bypass going from the western bypass. The national highways have already done western bypass. Eastern bypass requires some assistance from you. We have prepared a plan, making it flyover sort of issue and taking it, connecting to the national highway, which will require around 800 crores. I request you to see that this particular project is sanctioned. I will invite you to call the foundation stone of this function in my constituency. Friends, I am really happy that Center has really helped us in many ways in the state of Goa. And I'm proud that my engineering team, along with Mr. Vishal Pandey, who is posted here, Mr. Sandeep, Mr. Kamath, Mr. Bhinde, and all other engineers. We have superintending engineers, executive engineers. I cannot forget their contribution in the development of road network in the state of Goa. We have Mr. Former Chief Engineer, Mr. Parsekar also. I would also put his name on record. He has also contributed for the development of the state of Goa. You should not forget anybody who contributes, whether it is even a small junior engineer or assistant engineer. That has been our nature, to take recognition of all such people who contribute in the development of the state. And that is why I thank all our engineers who have done really excellent work. There are many roads. I request the people, and since engineers are here, you can go and see some of the beautiful bridges. You can go to Marmugao Port Trust. That road, 4-lane road, is excellent road that you can see. Then you will see that you are not in this world, you are in the different world. Just like Nitin Gadkari ji always says, that road network is the main important thing required for the development of the country. And he has helped us like anything. Out of his love for Goa, he always helps us for anything. And that is why I am extremely thankful to Minister Sri Nitin Gadkari ji, because whenever we have demanded, he has always obliged us. He has never said no to us. Similarly, our thanks to our beloved Prime Minister. He has a special place for Goa. And that is why whenever Goa's proposals go, he never says no to us. He came specially to Goa to inaugurate 77-feet Ram statue at Pattakali Mutt. He was kind enough to visit in spite of his busy schedule and address the entire state of Goa. So I thank all of you, and I thank also Mr. Ajay Tamta ji. He especially came here today for the inaugural ceremony, and I am sure he will consider our request and see that something is done for the state of Goa. I thank IRC President Sri Meghwal and his team for having selected Goa, given us an opportunity to host this council meeting in the state of Goa. All of you, all the staff of my public works department, who have contributed in a small way also for the success of this council meeting, wish you all the best. Good luck. Thank you. Jai Hind. Jai Goa.
आईआरसी के मिड टर्म काउंसिल मीटिंग के आज के कार्यक्रम में जिन्हें आप सबने सुना थोड़ी देर पहले ही, उनको एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जाना था हमारे युवा मुख्यमंत्री, जिन्होंने गोवा के प्रदेश के डेवलपमेंट और हमारे रोड डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर रखा। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और सुबह से हमने गोवा की अपने रोड ट्रांसपोर्ट के जितने भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, स्टेट के और भारत सरकार से सीधे काम करने वाली एजेंसीज, उनकी हमने मॉनिटरिंग की मीटिंग भी की थी। और हमारे बहुत ही अनुभवी और बहुत ही वरिष्ठ 8 बार के एमएलए रहे हैं, जिनका लंबा राजनीतिक सामाजिक इतिहास है, ऐसे हमारे दिगंबर कामत जी, मेरे साथ राज्यसभा के सांसद, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और लगातार संसद में हम लोग मिलते ही रहते हैं, ऐसे सदानंद जी, हमारे डीजी रोड, जिनके मार्गदर्शन में हम पूरे भारत के अंदर रोडों के डेवलपमेंट में लगातार उनकी मेहनत रहती है। और ऐसे विनय जी राजावत जी, जिनके मार्गदर्शन में ये मीटिंग हो रही है। आईआरसी के हमारे राहुल गुप्ता जी और अध्यक्ष भारतीय सड़क कांग्रेस के आदरणीय डीआर मेघवाल जी। आपने देखा ही होगा राहुल जी ने और मेघवाल जी ने अपने इस आईआरसी के मोटिव को हम सबके बीच में रखा ही। प्रोफेसर मनोरंजन जी और हमारे पहले डीजी रोड रहे, जिनके मार्गदर्शन में हमने, क्योंकि मैं नया मंत्री बना था तो मैं सारंगी जी से काफ़ी कुछ सीखता था रोड ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि उससे पहले मैं टेक्सटाइल मंत्री था, तो उस समय सारंगी जी का बड़ा प्यार मिलता था। ऐसे हमारे सारंगी जी, यहाँ पर हमारे राजीव जी, लक्ष्मीकांत जी, मनोज जी, संदीप जी, श्री वी के भिंडे जी, मध्यावधि परिषद के दत्ता प्रसाद एस कामत जी। आईआरसी के बारे में आप सबने सुना है कि हमारी मिड टर्म मीटिंग यहाँ होनी है। 2 दिन तक हमारे देश भर के और आईआरसी के हमारे सभी अच्छे इंजीनियर्स, हमारे स्टेट के भी इंजीनियर, हमारे विशेष रूप से जो सड़क निर्माण में जिनका विशेष योगदान रहता है, ऐसे विशेषज्ञ जो कि अलग अलग सत्रों के माध्यम से यहाँ पर को आज और कल बैठेंगे, जिसका उद्घाटन का आज का यह अवसर ही है। आप सबके ध्यान में ही है कि लगभग 90 वर्षों से आईआरसी जिन गाइडलाइंस पे भारत देश की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण का काम करती है, क्योंकि आपके ध्यान में ही है जैसा कि भारत का पूरा भौगोलिक परिदर्शन है, कहीं हिमालय में भी सड़क बनानी होती है तो कहीं समुद्र के किनारे में भी सड़क बनानी होती है। अलग अलग परिस्थितियों में हमारे अच्छे सड़क निर्माण की भूमिका पूरे दुनिया के अंदर दूसरे नंबर की सड़क निर्माण की भूमिका हमारा रोड ट्रांसपोर्ट और स्टेट की रोडें पूरे दुनिया के अंदर एक इतिहास बनी है कि सबसे ज़्यादा सड़कें दूसरे नंबर में भारत में दुनिया में है। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में 2014 में भारत की सरकार के निर्माण में आप सबका योगदान रहा। गडकरी जी की गाइडेंस में लगभग हम 94,000 किलोमीटर रोड ही हमारी एनएच था। आज हमारे लगभग 1.5 लाख किलोमीटर की रोड पूरे देश भर के अंदर है। ये अपने आप में एक विशेष कीर्तिमान तो है ही है, और इस कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए आईआरसी के गाइडलाइंस के जो मानक बनते हैं उसका पूरा 100% हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जो जो समस्याएं जिन जिन परिस्थितियों के अंदर आती है, उन समस्याओं का हम समाधान भी करते हैं। मैं आज सुबह से कई रोड्स पे, कई ब्रिजेस पे गोवा के गया और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। मैं आज इस मंच के माध्यम से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब को और आपके स्टेट के इंजीनियर्स को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने पूरे देश भर में चाहे ब्रिजेस बनाने में जो विशेष प्रकार की उपलब्धियों भरा ब्रिज बनाए हैं,
अच्छी रोड्स बनाई हैं, उसके लिए मेरा डिपार्टमेंट तो है ही, आपको सहयोग कर ही रहा है, मगर आपके राज्य सरकार के इंजीनियरों ने भी बड़े कीर्तिमान किए हैं। जहां अटल ब्रिज के माध्यम से आपके 2 ब्रिज, जबकि पुराने ब्रिज हैं, उनके बीच में पियर उठा करके नए ब्रिज के निर्माण करने में, जो कि दिखने में भी, तो वैसे आपके ध्यान में ही है, आपका तो 17-18 लाख का पॉपुलेशन है, मगर लगभग 70 लाख 80 लाख यहाँ टूरिस्ट आते हैं। और मैं तो कहूँगा, क्योंकि मैं भी टूरिज्म पर डिपेंडेंट स्टेट हूँ, उत्तराखंड राज्य की, हम भी लगातार कीर्तिमान स्थापित कर ही रहे हैं। तो वैसे ही आपके भी गोवा में आने वाले टूरिस्ट की संख्या आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये करोड़ तो आप अभी पहुंच ही जाओगे, 1.5 करोड़ पहुंचने में भी आपको टाइम नहीं लगेगा। जिस प्रकार से गोवा का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट लगातार बढ़ रहा है, यह आपके राज्य के लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा। मैं IRC के आज के इस मीटिंग में मैं आप सब अपने इंजीनियर से कहना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए रोड इंजीनियरिंग के विजन को आपने देना है। हमने दुनिया की रोड बनाने की टेक्नोलॉजी के अंदर अपना एक कीर्तिमान बनाना है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे वहाँ जो हम रोड बनाए तो विदेश की टेक्नोलॉजी को देखते हुए अपने यहाँ रोड बनाने का प्रयास करते हैं। वो दिन दूर नहीं कि जिस प्रकार के रोड्स बनाने का निर्माण हमारे देश के अंदर वर्तमान में चल रहा है और 2047 के लक्ष्य को लेकर के हम उस विजन की सोच के साथ सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, तो आने वाले समय में भारत में सड़कों को देख करके दुनिया के अंदर सड़क बनाने का काम प्रारंभ हो जाएगा। आपके ध्यान में होगा कि हम हाई एल्टीट्यूड के अंदर जोजिला जैसी, सोनमर्ग जैसी और अटल टनल आपके हिमाचल के अंदर हम जो बना सकते हैं, जिसमें अब उस जगह पे आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का, इंजीनियर्स का जाना तो रहा होगा, जहाँ काम करना भी साल भर के अंदर 3-4 महीना ही हम काम कर पाते हैं। वहाँ ऑक्सीजन का लेवल भी कम है। आदमी का सर्वाइव करना तो छोड़िए, मशीन को चलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आप तो इंजीनियर हैं ही, आपके ध्यान में ही है। तो वहाँ पर किन किन कठिनाइयों में हम सड़कों का निर्माण करते हैं। अभी हमारे डीजी साहब, सारंगी साहब बैठे हैं, राहुल गुप्ता जी भी बैठे हैं। जब हम लिपुलेख दर्रा, आदि कैलाश के पास, कैलाश से मानसरोवर को जाने वाला जो रोड है, उस रोड की कनेक्टिविटी करने के लिए हमारा कितनी सारी कठिनाई थी। रोड्स को पहुंचाने के लिए, उस जगह पर मशीनों को ले जाने के लिए इतनी सारी कठिनाई थी। और अगर चॉपर नहीं होता तो हम तब वहाँ तक ऊपर मशीन नहीं ले जा पाते, क्योंकि वो मेरी ही कॉन्स्टेंसी है। और मैंने उन परिस्थितियों को स्वयं देखा है कि हमने मशीनों के पार्ट को हाई एल्टीट्यूड में ले जा करके उस जगह पर ज्वाइन करके तब हम उल्टा करके पहाड़ को काट के लाए नीचे से। कितना कठिनाई होता है जब हम रोड को नीचे से ऊपर काटते हैं, तो उसमें दोनों खतरे होते हैं। लोग भी, बहुत लोगों की जानें भी जाती हैं, महंगी कॉस्टली मशीनें भी उसमें हमारी दब के खत्म हो जाती हैं। ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम है। इस चैलेंजिंग काम को मेरे इंजीनियर्स, मेरे NH के इंजीनियर, मेरे स्टेट के इंजीनियर्स ये मिल करके करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि हम हर काम को करने में संभव है। हाई एल्टीट्यूड के साथ साथ समुद्र के अंदर और समुद्र के बीच में भी सड़कों का निर्माण हम कर रहे हैं। तो इसलिए ग्रेटफुल, हम लोग बहुत शुभकारी। ये नए विजन की सोच है, ये प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य की सोच है। नहीं तो लोग ये सोचते थे जहाँ लोग रहते हैं, पहले ये सोच थी जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है, उन्हीं रोडों को बनाया जाए। मगर पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सीमा के क्षेत्र के अंदर, जहाँ हमारे सीमा में सैनिक विराजमान है, वहाँ तक की रोड कनेक्टिविटी पूरी की पूरी होनी चाहिए। आज हम लोग रोड बनाते हैं, कहाँ कैलाश मानसरोवर रह गया, और उस हिमालय के अंदर हम रोड बनाते हुए, हिमाचल होते हुए, लेह लद्दाख होते हुए, जम्मू कश्मीर तक के हम हिमालय के अंदर टनलों के माध्यम से, चाहे ओपन रोड के माध्यम से आज रोड निर्माण का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में बॉर्डर के अंदर रोड बनाना, जो भी कठिनाइयों के साथ, उसको बहुत ताकत के साथ हम बना रहे हैं। एक तो यही परिस्थिति नहीं, आप सबके ध्यान में होगा कि सोनमर्ग टनल का जब हमने उद्घाटन करना था, टनल भी बन रही थी, तो वहीं आतंकवादियों के माध्यम से हमारे इंजीनियरों में, हमारे श्रमिकों में उनकी जान तक ले ली गई। इन कठिनाइयों का भी हमको सामना करते हुए रोड बनानी पड़ती है। तो ये आपको, हम लोगों को सोचकर अच्छा लगता है कि हम इन परिस्थितियों में सब मिल करके हिम्मत नहीं हारते, मगर जो लक्ष्य हमारे पास है उसको हम पूरा करते हैं।
आज मैं आपके गोवा में भी देख रहा था। मैं IRC के इंजीनियरों से भी निवेदन करता हूं कि आप नए कोर्ट में खासतौर पर स्लोप प्रोटेक्शन में, क्योंकि बहुत सारा पैसा हमारा खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट और अभी गोवा और कई अन्य राज्यों में भी जब हम रोड बना लेते हैं तो रोड बनाने के बाद जो स्लोप प्रोटेक्शन का काम है उसमें एक बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है कि हम अच्छी रोड भी बना लें तो पहाड़ के गिरने के कारण से रोड खराब हो जाती है। इसलिए हमने अपने DPR में भी नया प्रोविजन किया है कि हम पहले स्लोप प्रोटेक्शन करेंगे, फिर रोड बनाने का काम कंप्लीट करेंगे। इन सबको भी ध्यान रखने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ हम किस प्रकार से स्लोप प्रोटेक्शन के काम को ध्यान में करते हुए अच्छे डिस्कशन आए, आप सबकी चर्चाएं हों, तो उसको भी जोड़ते हुए उस खर्चे को भी हम कम करें। खासतौर पर रोड बनाने के साथ साथ हम पर्यावरण का भी विशेष ध्यान दें। हम पर्यावरण का ध्यान रखते ही हैं, मगर कठिनाइयाँ बहुत जगह भी होती है। आपके यहाँ तो फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने में बहुत समस्या है। मंत्री जी, आपके इंजीनियर आज बता ही रहे थे कि अगर हमारा लैंड एक्विजिशन टाइम से नहीं होने के कारण से हमारी रोड की देरी भी हो रही है और रोड्स बनाने का खर्चा भी महंगा हो जा रहा है। मगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए बनाएं। और ख़ास तौर पर चूंकि जैसा आपने बताया कि हमारे ब्रिजेस में सेल्फी पॉइंट बन गए, क्योंकि गोवा तो अपने आप में वैसे ही लोग यहाँ टूरिज्म आते हैं, तो जो एक नया जुआरी में आप जो ब्रिज बना रहे हैं उसके लिए आपने डिमांड्स भी किया है, उसको भी हम स्वीकारते हैं। हमने पहले ही DPR हमने लिया है, तो वो भी एक पॉइंट बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा। 3-4 आपके नए ब्रिजेज भी जो बनने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे बनेंगे। इन चीज़ों को भी आप लोग देखेंगे। स्लो प्रोटेक्शन में भी मैंने जैसे कहा कि AI का लैंड पॉइंट्स प्रोटेक्शन के साथ साथ हम सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन सब चीज़ों को आप करेंगे। ऐसे ही पन्ना देवी करासवाड़ा ये 4 लेन कॉरिडोर आपका बनाया है, मड़गांव पश्चिम बाईपास बनाया है, कानागोल बाईपास बनाया है। ऐसे आपके बहुत सारे रोडों को आपने बुलाया। अभी CM साहब ने और आपने कुछ डिमांड्स की हैं। उन डिमांड्स के बारे में जैसे आपने बोला है कि बोरिंग ब्रिज को जुआरी रिवर पर है, उसको हमने एनुअल प्लान में शामिल कर लिया। अभी मीटिंग में ही हमारी डिस्कशन हुआ था, उसको हम एनुअल प्लान में ले ही रहे, तो उसकी कोई समस्या नहीं रहेगी। मोले खंडेपाल जो 4 लेन का जो है उसको भी हमने एनुअल प्लान में शामिल किया ही है। सेकेंड, आपका जो मड़गांव एक्सटेंशन बाईपास है जिसकी आपने डिमांड की है वो स्टेट रोड आपकी है, मगर कोई ना कोई रास्ता, अभी DG साहब हम लोग बैठे ही थे मीटिंग में, तो कोई ना कोई रास्ता लेकर के इसका भी उसे भी हम भारत सरकार के किसी न किसी या डीकंजेशन में लिया जा सकता है, उसमें लेकर के उसको भी हम स्वीकारते हैं। आपको कोई लगना चाहिए कि भाई कि आपको भारत सरकार से डबल इंजन का फायदा पूरा मिलेगा। मोदी जी वैसे ही आपको और गोवा को बहुत पसंद करते हैं। गडकरी जी का तो स्वयं बैठ के उन्होंने कई काम यहाँ कराए हैं, इसलिए और जिन कामों को मैं देखा हूँ तो मुझे लगता है इसमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आज के इस मीटिंग में जो IRC का कॉन्सेप्ट है वो आने वाले समय के अंदर और अच्छा हो, बढ़िया हो। टनल पे भी हमारा आने वाला समय, हम नए रोड नेटवर्क में टनल्स को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि अब जितना हमारे पास ब्राउन फील्ड था, हम एलिवेटेड में भी आ गए। कई जगह पर हम लोगों को टनल बनाने में भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही है। हम वो भी नेटवर्क आने वाले समय के अंदर टनल के माध्यम से भी अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करके समय की बचत करेंगे। पुनः आप सबको बधाई, शुभकामनाएं।